everyone. You are watching Procaffeinate with Books, and today I have Mr. Sanjay Tripathi, who is the author of the great sensational book that has been recently launched in India. It's Criminals in Uniform, which is now also being adapted into a web series as well. So, hi, Mr. Sanjay. Hi. How have you been doing these days? How is things going on with you right now? Yeah. First of all, actually, my name is Sanjay Singh, and Hmm. my co-author name is Sanjay Rakesh Trivedi. Okay. And we have a character in our book whose name is Sanjay Trivedi. He is a journalist. That's have why the name combined. yeah, we have combined both the name Mm-hmm. Sanjay plus Rakesh Trivedi into Sanjay Trivedi, and we are very happy that people actually now know us by that name. I'm Right. also being called as Sanjay Trivedi, and he is also being called as Sanjay Trivedi. Oh, So that's a good thing happening. And nowadays, quite busy actually we are going on because this book actually has been giving a very good response and all. Recently, I was in the World Book Fair in Delhi, yeah. just concluded, and on the 25th of Feb, actually a web series was also announced by HarperCollins and with a very well-known production house. Absolutely. I'm a big fan. So this will be another one more web series based on my book, which will be coming somewhere. It will be releasing somewhere in the month, somewhere in 2024. Okay. The book is already in the market and doing Yeah. good. It's actually doing good. I actually loved reading it when I got my hands on. Usually, reading Hindi books is a little challenge these days, but otherwise, honestly, मुझे बहुत मजा आया था वो पढ़ के. It's like उठने का मन नहीं कर रहा था. Yeah, I continuously binge reading page after page. कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. It was like that. So I do have some questions for you that I wanted to ask. So I'll just quickly get through them. The first one that I have for you is, where did this whole idea of transitioning your career from being a journalist to becoming a writer come into the picture? Yeah, I'll tell you there are multiple reasons. One of the reason is the erosion of journalistic values. Journalism is not, it has not remained the way it was actually 1 decade ago or so, and the values have eroded. So that was one kind of detachment actually from journalism because we did not feel that the real journalism is happening. That was one of the reasons. So in 2019, somewhere this Sony Live is an OTT platform. They came is looking at searching me, and then they approached me that they want a web series based on my book. It was on Telgi scam, which I had authored in 2004. Oh. That was time there was no Google, no WhatsApp, no YouTube. So these people came searching for me, and then they bought the rights of my book. And it will like the web series is already actually about to be completed, and it will be streaming somewhere in month of May or June of 2023. So it will be Okay. streaming that one. So after the kind of response I got, then we got an idea. Let's actually we can do something on this field also. जहाँ पे real events and all based up we can do something. And myself and my co-author Rakesh, we have been investigative journalists for a pretty long time. So a lot of actually a kind of experience and all we have, जिसमें हमने बहुत सारे cases जो थे, and we thought, okay, let's give it a try. And like response was so good that we totally we authored 3 books, and all the 3 are actually being converted into the web series. First one was on Telgi scam, which is on Sony Live. Second book was Sheena Bora murder case. The book title was Ek Thi Sheena Bora. That's also being made into web series, and this is the latest one, CIU, Criminals in Uniform. That's being so we are getting good response and all, and it has been very very encouraging. In fact, not just for us, but it is encouraging for all the authors basically who have been writing on the real life stories, or journalist turned author and all. A lot of demand and from the OTTs and production houses for the real stories. Right. So yeah, it's doing really good now. बेस्ड ऑन अ रियलिटी शो वाला जो टैग है वो बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल आई थिंक एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों की एक कंजम्पशन एपेटाइट भी बन गई है फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट. हमें ये देखना है, रियलिटी से इंस्पायर्ड स्टोरीज देखनी है सबको. सो आपने जब ये बुक लिखना स्टार्ट किया, हाउ डिड यू एक्चुअली नैरो इट डाउन
टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि मुझे इस टॉपिक पे बुक लिखनी है? Like- देखिए जर्नलिस्ट, क्योंकि जैसे मैं था कि हम लोग रियल लाइफ जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं और मेरे को ऑथर राकेश द्विवेदी। जर्नलिस्ट होता है या जर्नलिस्ट को भी आप छोड़ दो, जो भी ऑथर होता है वो आसपास में जो हो रही घटनाएं होती है, जो इवेंट्स हो रही होती है पर्टिकुलर पीरियड का काल के अंदर जो घटनाएं हो रही होती है, उससे अछूता नहीं रहता है। तो कहीं न जुड़ता है, उससे इंस्पिरेशन लेता है या उस पर लिखने की कोशिश करता है, वो पूरी तरह से वो डिटैच होके नहीं रहता। ऐसे ही चीजें बनी और एक बार मुझे याद है कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी एंड इट वाज मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल 2021 सेकेंड वेव था, सब तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था एंड मुंबई का एक सबब है कांदिवली, जहाँ के स्टेशन पर मैं और राकेश थे और वहां पे जो उस दौरान में जो रियल लाइफ में जो घटनाएं हो रही थी और देश की सबसे बड़ी खबर थी, देवर शो इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, अनबिलीवेबल थी और तो हमको लगा कि यार इस पर एक लिखना चाहिए। तो राकेश का आइडिया था कि सर इस पर लिखने की कोशिश करते, बिकॉज इतना ज्यादा रायता फैला हुआ है कि उस सिलसिलेवार तरीके से, बिकॉज गूगल सर्च वगैरह में 1 लाख रिपोर्ट्स आपको शायद मिल जाएगी, बट पता नहीं चलता सिरा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है क्या। तो उसको एक लीनियर तरीके से, एक सिंप्लीफाइड वे में समझाने के, बताने की जरूरत थी। तो वहां से ही हमको लगा कि इस पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे इस तरह के पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के पर हमने कंसीव किया था, बड़ी गर्मी के दौरान में। ये वो दौर था जब सारे कैफेज बंद हुआ करते थे, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, सारे ऑफिसेज बंद थे, पूरी तरह से लॉकडाउन था। हमारे पास बैठ के लिखने के लिए भी जगह नहीं थी। चूंकि जर्नलिस्ट थे, ट्रेन भी बड़ी मुश्किल से चलती थी, जर्नलिस्ट अपना बैग लेकर जाते थे। और आपको बता दो इंटरेस्टिंग कि ये किताब 90% बुक जो है वो कांदिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठ के लिखी गई है। Oh my God. हम लोग सुबह अपना लैपटॉप और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह लेके पहुंच जाते थे। साथ में 2 थर्मस मैं लाता था, 2 थर्मस राकेश लाता था, पूछता। उन दिनों काढ़ा पीने का बहुत प्रचलन चल रहा था, तो एक में काढ़ा होता था, एक में लेमन टी होती थी, एक में गर्म पानी होता था, एक में कॉफी होती थी, और 7-8 घंटा उस भरी गर्मी और दोपहर के अंदर हम लोग बैठे रहते थे। और इस तरीके से हमारी जो 90% किताब थी वहां पर ही लिखी गई। और बाद में धीरे धीरे ओपन होना शुरू किया, बट हम लोगों ने कोविड का और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया और उस दौरान में किताब थी वो पूरी हो गई है। ये भी अपने आप में एक अलग स्टोरी हो गई है, आई थिंक, बताने के लिए कि उस बुक को कैसे लिखा गया, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए आप लोग पे। तो मतलब पहले आपने ये बुक आई थिंक हिंदी में लिखी थी एंड देन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया हार्पर कोलिंग्स के थ्रू। तो ये चॉइस ऑफ लैंग्वेज के पीछे कुछ रीजन था? जी देखिए, किताब हमने लिखी थी मूल तौर पे हिंदी में ही लिखी थी, हिंदी में ही सोचते हैं तो हिंदी में लिखी थी, बट साइमल्टेनियसली हमने इसका मराठी में ट्रांसलेशन करवाया और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया। और ये जब और बाद में जब रिलीज करने की बात आई तो सबसे पहले हमने मराठी जो एडिशन था उसको रिलीज किया। इसके पीछे वजह था कि कहानी है वो पुलिस वालों के बारे में है, जैसे क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, कहानी पुलिस वालों के बैकग्राउंड पर रखी गई। तो हमारा था कि पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका महाराष्ट्र में जो है वो मराठी भाषी ही है, मराठी भी पढ़ता है। खासकर बात करें जो कांस्टेबल या सिपाही से लेकर जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, 40-50 हजार की पुलिस फोर्स है, वो लोगों के में था। और महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी बात ये है हमारे यहाँ पे कि मराठी में पढ़ने का बहुत चलन है। तो हमने पहले एक्चुअली में उसके लिए मराठी में किताब लाई, मराठी का अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह आया। उसके बाद किताब उसके 2 या 3 महीने का गैप रख के हमने हिंदी में रिलीज की और उसके 2-3 महीने के बाद में फाइनली हार्पर कॉलिंस का जो इंग्लिश एडिशन था वो आया। और इसका फायदा ये हमको हो गया कि हमने उसके मराठी और हिंदी एडिशन की इतनी ज्यादा चर्चा हुई थी, अखबारों में आई, डिबेट्स वगैरह पर उस पर वगैरह हुई, तो इंग्लिश एडिशन के लिए बहुत अच्छा रनवे था, मतलब टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे ट्रैक जो था वो तैयार हो चुका था। तो वो हमने एक स्ट्रेटेजिकली किया था। और ये हमेशा रहता है कि वर्नेकुलर के लैंग्वेज के जो पाठक होता है वो पढ़ता है और वो बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है। जो पाठक होता है उसके कंपेरेटिव उसकी जो आईज होती है वो बर्ड व्यू के तौर पे, बर्ड आई व्यू ज्यादा होती है, बट हिंदी और मराठी वाला जो होता है वो आपको डायरेक्टली रिलेट करता है। तो जो पहले मराठी हिंदी लाने का फायदा अंग्रेजी की किताब को काफी ज्यादा हुआ। और क्योंकि चर्चा इतनी ज्यादा पहले हो चुकी थी कि इंग्लिश की बुक आते ही 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ
उसके ओटीटी के लिए सीरीज के लिए वो साइन हो गई। दैट इज अमेजिंग एक्चुअली। मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम सुनने को मिलती है ऑनेस्टली, कि बुक लिखी, बुक भी हिट हो गई एंड देन ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट ऑनेस्टली। जी। तो आपको अगर इन जेनरिक टर्म्स पूछा जाए, तो आपके हिसाब से व्हाट इज अ गुड स्टोरी, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ गुड स्टोरी? देखिए, हम जो लिखते हैं बेसिकली क्राइम थ्रिलर जॉनर पर लिखते हैं, बट ओवरऑल कहा जाए कि सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और एंटरटेनिंग होनी चाहिए। ये दो चीज बहुत जरूरी है। आज का जो दौर चल रहा है भाई, बहुत ही फास्ट पेस है, तो उसका स्पीड अच्छी उसमें होनी चाहिए और पेज टर्नर होनी चाहिए। ये चार जैसे आप किसी भी तरह का खाना बनाते हैं तो कुछ बेसिक चीज उसमें होती ही है। आपको गैस करना ही है, तेल डालना है, छौंक लगाना है। ये बेसिक तौर पे ये तीन चार जो चीजें, कि स्पीड, पेज टर्नर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद में एक और जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नयापन क्या है, फ्रेशनेस क्या है। आज की तारीख में इतनी ज्यादा मटेरियल्स अवेलेबल है, चाहे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म देखे, चाहे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट देखे, या यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग चैनल्स वगैरह देखे, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ मटेरियल कहीं ना कहीं अवेलेबल है। सोशल मीडिया के साथ दिक्कत ये भी है कि अनवेरिफाइबल भी होता है और अनकंट्रोलेबल भी। बिल्कुल। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन में आपको एक अलग चीज करनी है, कुछ नया करना है, कुछ फ्रेश करना है, वो सबसे बड़ी जरूरी होती है। बिकॉज आज के दौर में कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपको यही लगेगा बीन देयर डन दैट वाली चीज इसमें हो चुकी है। तो नयापन और फ्रेशनेस भी इसमें इक्वली जरूरी है इसमें। ओके, गॉट इट। आई थिंक हम इसको लिखित में रखेंगे, स्पेशली फॉर द न्यूबी ऑथर्स जो सोच रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए मार्केट को कैप्चर करने के लिए। एंड अगर हम बात करें लाइक पूरे बुक जर्नी की, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, लाइक हर हफ्ते 2 बुक्स तो कम से कम हफ्ते में मैं पढ़ ही डालती हूँ। इस स्पीडेश शो पे चल रहा है फिलहाल, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कि मैं कितनी सारी नई बुक्स कवर कर लूं। बट हमेशा ये डाउट होता है कि ऑथर ने बिहाइंड द सीन्स क्या क्या किया है। एक जो बुक की डेवलपिंग जर्नी होती है, कि एक बुक कोई ऑथर लिखता है फ्रॉम राइटिंग टू पब्लिशिंग, वो पूरी जर्नी कैसे होती है, हाउ डज दैट टेक प्लेस? देखिए, हमारे वाले में खास तौर पर बात यह है कि हम लोग एक कमेंटेटर के तौर पर नहीं होते हैं। जैसे कोई इवेंट हो गई और उसके बाद में किसी ने आके उसके हाइलाइट्स को देखकर किताब लिख दी, या मैच के रिकॉर्डिंग को देख के उसने हाईलाइट बना दी, हम उस तरह का नहीं करते। हम स्टेट प्लेयर के तौर पे, बताइए, स्पेक्टेटर के तौर पे भी नहीं होते। जो सारी जितने की किताबें लिखी वहां पर हम उस मैदान में, नॉट ओनली दैट ग्राउंड, अपना स्टेडियम, जबकि एक्चुअल में उस ग्राउंड पर और उस पिच पर जहाँ पे खेल चल रहा था, वहां पे फिजिकली इन पर्सन किसी न किसी तरह से मौजूद थे और कुछ न किसी तरह का रोल प्ले जरूर किया। तो उसमें जो हमको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, ऑब्वियसली वो बाकी के मुकाबले अनोखा ही होता है। तो किताब तो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मैंने बताया, जल्दबाजी में हमने तमाम लिख ली। उसका अगला ही होता है कि आप पब्लिशर्स को अप्रोच करेंगे या पब्लिशर आपको करेगा। यहाँ पे चीजें होती है कि कई कुछ पब्लिशर आपको रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को पसंद भी आएगी। सेम किताब है, अगर आप 5 पब्लिशर को दिखाएंगे तो 4 रिजेक्ट करेंगे और एक को बहुत पसंद भी आएगी। उसके बाद एक तरीका, आप जो कॉपी एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, ब्लर होता है, कवर पेज डिजाइन होता है, उसका प्रोसेस होता है। मेरी सलाह ये रहती है कि आप इसे छोड़ मत दीजिए पब्लिशर पे या कवर पेज डिजाइनर पे कि भाई मैंने लिख दिया, छोड़ दो। नहीं, आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, इसके यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है। पीछे जो होता है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और जो कवर पेज होता है, आप भले डिजाइन नहीं करें, बट उसको विजुअलाइज करने में, और वो कैसे दिखेगा, किताब से मैच करता है या नहीं करता है, तमाम चीज में एक ऑथर है, उसको एक्टिव रोल एक्चुअली में निभाना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज वो जो बुक है वो आपकी बेबी है। अपने सबसे ज्यादा चिंता आपको करनी चाहिए, बजाय कि कोई टीचर या स्कूल का प्रिंसिपल करे। तो उस तरीके की चीज होती है, तो उसमें चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग जैसे जो टेक्निकल टर्म हो जाते हैं, उसके बाद में बुक छपने के लिए जाती है। और उसमें भी अगर बहुत तेज भी आपने काम किया हो तो 3 महीने में छप जाती है। अदरवाइज वेटिंग पीरियड अच्छा खासा लंबा होता है। आप समझिए कि जितना बड़ा पब्लिशर होगा वो उतना ज्यादा लंबा वेटिंग पीरियड है। यस, तो 6 महीने से 1 साल के बीच के अंदर अगर आपकी किताब आ गई है
सबका, तो ये समझिए कि एक अच्छे खासे डिसेंट पेस पे आपने काम किया है। ओके। और जब आप ये बुक लिख रहे थे उस टाइम पे आपका शेड्यूल किस हिसाब से चल रहा था? मतलब दिन के कितने घंटे सिर्फ राइटिंग में, थॉट प्रोसेसिंग में जाते हैं, या रैंडम शेड्यूल्स होते हैं कि किसी किसी दिन आप बहुत लिखते हैं, किसी किसी दिन कुछ भी नहीं होता है? कैसे होता है ये सब बैकग्राउंड सीन्स में? देखिए, हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो बैकग्राउंड था वो इसमें बहुत काम आया। तो हम लोगों ने जो किया था कि सबसे पहले तो हमने जितने भी मटेरियल थे और इंफॉर्मेशन थी वो एक साथ में हमने जमा की और उसको एक जगह पर हमने कंपाइल कर दिया। उसमें एक अच्छा खासा वक्त लग गया। तो उसके बाद हमने जो किया था कि किताब के स्ट्रक्चर्स बनाए, कितने चैप्टर्स होंगे, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी वगैरह वो बनाए। उसके बाद जब एक्चुअल लिखना शुरू किया तो चूंकि हम जर्नलिज्म में रहे तो हम लोगों को लगातार लिखने के काम करने की आदत थी, तो आराम से ब्रेक वगैरह को माइनस कर दूं तो 10 घंटा आराम से लिख लेते थे। ऑन अ डे का एवरेज 2500 वर्ड के आसपास में लिख लेते थे। तो और अच्छी चीज ये थी कि हमको कंटिन्यूस काम करते थे, मतलब विदाउट ब्रेक। और उस दौरान हमने शेड्यूल ऐसा कर लिया था कि अब किसी भी तरह की छुट्टी नहीं लेनी है, बाकी कोई और काम नहीं करना, ना घर का काम करना है, ना कोई और काम करना है, यही करना है। और जब आप लगातार उसको जीते रहते हैं देन आपको आपकी मेमोरी भी, रिसेंट मेमोरी हमेशा ताजी रहती है, तो आपको कैरेक्टर्स याद रहते हैं। कैरेक्टर्स क्या उसकी उम्र है, कैसे दिखता है, उसने पहले क्या किया, अगला उसका कदम क्या होगा, जब आप लगातार लिखते हैं। तो उस तरीके से हमने किया था कि पहले तो मटेरियल जमा किया, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके बाद में लिखना शुरू किया। जैसे लिखना हमने शुरू किया तो एक्चुअल आप लिखने की बात करेंगे तो 2500 वर्ड पर डे का अगर आप एवरेज निकालिए तो उसमें किताब हमारी आराम से 40 दिन के आसपास के अंदर किताब की मैन्युस्क्रिप्ट थी वो पूरी हो गई थी। बढ़िया है। मतलब ये तो आई थिंक काफी फास्ट पेस्ड है। मैंने हार्डली सुना है कि कोई 6 महीने के अंदर ये सब कंप्लीट कर पाता है। तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमको ढूंढने में बहुत मेहनत नहीं लगी। जब घटनाएं हो रही थी इस तरह की होती हैं तब वहां पे हमको विजुअलाइज करने के लिए या चीजें समझने के लिए हमें वापस से एक बार फील्ड में जाना नहीं पड़ता है। हाँ, ऑलरेडी थे वहां पे। हमको पिक्टोरियल करने के लिए अब होती है, मान लो किताब जो लिखी जाती है एक्चुअली में यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद आप एक बार जब बैठ जाएंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पे बटरफ्लाई की तरह चलने लगती हैं लगातार लगातार। क्योंकि सारे मटेरियल अगर पहले से आपने जमा करके रखे हैं एक साथ तो उसके बाद तो आपको एक सिरे में पिरोने वाली बात होती है। और क्योंकि हम उस तरह का काम, इस तरह का जो जॉनर में हमेशा काम करते आए थे तो हमारी एक स्पीड थी और अच्छी खासी स्पीड थी, या नॉर्मल से थोड़ी बेहतर स्पीड में। ट्रू। तो अब जस्ट टू मेक दिस अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे एंड आपको विद इन फ्यू सेकंड्स व्हाटएवर थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट हैव टू नेम एन आंसर। ओके, रेडी? यस। ओके, फेवरेट बुक? संभोग से समाधि तक, इंग्लिश में इसका नाम है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस बाय ओशो, रजनीश। और ये बुक इज मोर ऑन द स्पिरिचुअलिटी। जो टाइटल आता है वो शायद आपको मिसलीड कर सकता है, बट बुक इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी। Okay, great. Good that you clarified it. And who's your favorite book character? संजय त्रिवेदी। Oh, the main lead in your book. एंड हमारी तीनों किताब में जो है उसमें संजय जो कैरेक्टर है वो हमेशा रहा है। और कैरेक्टर की अच्छी बात है कि वो ग्रे के बॉर्डर पर हमेशा रहता है। ओके, तो संजय इज लाइक द पेट नेम जो आपने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अपने लिए एक पेट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं हर मूवी के लिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नहीं, देखिए एज अ संजय मैंने किताब मतलब वो चीज को कवर किया है, इन्वेस्टिगेट किया। जैसे तेलगी घोटाला एज अ संजय सिंह मैंने कवर की, मेरी किताब रिपोर्ट्स थी एज एन एविडेंस कोर्ट में भी सबमिट हो चुकी। तो संजय वाज एक्चुअली रियल लाइफ में भी संजय उसमें कैरेक्टर था, इसीलिए उस संजय को उसमें रखा गया है। अच्छा, ओके। बट थोड़ा हमें मैचअप करने में फिर इशू होएगा क्योंकि जो बुक का कैरेक्टर है वो एक ही इज अ कॉप, लाइक पुलिस ऑफिसर, एंड यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, तो इन दोनों के बीच में कैसे मिलाप हुआ? जो कैरेक्टर है वो प्रोटोगोनिस्ट जो है वो एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है और बुक में लेयर में खुलती है, जैसे आपने पढ़ी होगी प्याज की जैसे लेयर्स खुलते हैं वैसे खुलती जाती है। एक ही बुक में आगे जाके 3 लीनियर तरीके से कहानियों का पर्दाफाश होता है।
तो एक कॉप की कहानी नहीं, शुरुआत में लगता है कि उस पर्टिकुलर कॉप की कहानी है, और वो लगता है कि शुरुआत में लगता है कि वजीर है, फिर आगे जाके लगता है महाराज ये प्यादा भर था, फिर आगे आकर वो वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पुलिस वाला था। बट अगेन वो जो कैरेक्टर है वो डार्क कैरेक्टर है। और ये तमाम जो चीजें हुई है, जो जिस व्यक्ति के नजर से देखी गई है, जो पत्रकार है उसके नजर से पूरे कहानी है वो देखी गई है, और वो पूरे कहानी में इसमें हम ग्रे से लेके डार्केस्ट ब्लैक के बीच के शेड में करते हैं, और उसमें सबसे लाइट ग्रे जो है वो ये पत्रकार है, और जो अपने बॉर्डर लाइन पे रहते हुए भी इन तमाम नेगेटिव कैरेक्टर्स के बीच में जाकर अपना जो काम है वो करता है, काफी स्किलफुल और बैलेंस तरीके से पूरा मूव करता है, जो अपने आप में बहुत मुश्किल काम था बॉर्डर लाइन पे करना। तो इस वजह से एक कैरेक्टर था जो हमें बहुत अच्छा लगता है। Okay. Next question. If you can actually change a thing on book, या if there is something in your book जो आप wish करते हो reality में भी हुआ होता, any part in the book? इनफैक्ट क्वाइट अपोजिट, हम किताब जो रियलिटी में हुआ होता है उसी पर किताब लिखते हैं। Okay. तो वैसा कुछ नहीं जो किताब में न है और जो आगे जाकर होगा, तो Oh, रियलिटी में हुआ, हम उसको हमेशा बेस बनाते हैं। it's like the opposite. यस। Okay, great. And अभी आपकी कोई second book in writing है जो coming soon वाले status में है? हाँ, असल में जैसे मैंने बताया कि 3 किताबें मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं। हम्म। ये सीआईयू के बारे में हम बात ही कर रहे हैं। सीआईयू क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म 3 भाषाओं में आ चुकी है। शीना बोरा पर जो किताब लिखी थी, सेंसेशनल मर्डर केस था, एक थी शीना बोरा, ये भी हाल में राजकमल प्रकाशन है उसने रिलीज की। एंड जो मैंने 2004 में किताब लिखी थी तेलगी स्कैम पर, जब मैंने तेलगी स्कैम एक्सपोज किया था, उसका अपडेटेड एंड एनहांस वर्जन है, वो आ जाएगा मई या जून में बाय हार्पर कॉलिंस ओनली। एंड दैट बेसिकली दे हैव प्लान्ड इट सच अ वे दैट जब वो वेब सीरीज आएगी उसके साथ ही साइमल्टेनियसली बुक रिलीज होगी, सो देयर इज अ काइंड ऑफ क्रॉस प्रमोशन भी हो जाएगा, बुक का भी हो जाएगा, वेब सीरीज का हो जाएगा। तो वेब सीरीज के साथ ही वो किताब रिलीज होगी मई और जून में। इसके अलावा 2 किताब और है जिसका ऑलमोस्ट काम जिसमें पूरा हो चुका है। होपफुली उसमें से एक 2023 में ही आएगी और एक शायद 2024 के बिगिनिंग में आ जाएंगी, और क्राइम जॉनर में ही है दोनों किताबें। आई थिंक क्राइम जॉनर्स में आपकी अच्छी पकड़ हो चुकी है। जी बिल्कुल। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल फेवरेट जॉनर के पढ़ने के मामले में, नॉट लिखने के मामले, तो आपका कौन सा फेवरेट बुक जॉनर है? क्राइम थ्रिलर मेरा हमेशा का फेवरेट रहा है, और उसके बाद सेकंड बेस्ट है वो धार्मिक किताबें ओ, या स्पिरिचुअलिटी वाली जो किताबें हैं वो बहुत काफी पढ़ता हूँ, और ये कॉम्बिनेशन ऑड बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं खुद ऑनेस्टली बहुत सारे अगर टाइप्स पढ़ती हूँ। काले रंग को सफेद रंग को मिला दिया, ऐसी बात नहीं। क्राइम बेसिकली जर्नलिस्ट होता है वो काफी लोग सिनिकल समझते हैं, बट काफी सेंसिटिव और काफी चीजों से करीब होता है, लोगों के इमोशंस और वगैरह को काफी करीब से देखता है, दुख दर्द को भी देखता है, और सबसे ज्यादा वो चीज समझता है फिलोसॉफिकली कि राइट और रॉन्ग जैसी चीजें शायद उसको नजर नहीं आती, बिकॉज हर व्यक्ति अपने तरीके से, अपने नजरिए से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है, चाहे उसने बहुत गलत काम किया हो, जघन्य काम किया। और ये जो चीज है सही और गलत का जो सबसे बड़ा फर्क है वो आपको बताता है, होता है धर्म। धर्म इज अ वर्ड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। लूज ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, एक अलग बात है। इस वजह से ये जो 2 जॉनर है जिसमें मैं काफी पढ़ता हूँ। ओके, एंड हु इज योर फेवरेट ऑथर? फेवरेट ऑथर मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन खासकर हिंदी का मैं बात करूं तो पुराने ऑथर्स में प्रेमचंद थे, वो बहुत बेहतरीन ऑथर रहे हैं, मेरे ऑल टाइम फेवरेट मैं बोलूंगा। और मौजूदा दौर में बात करूं तो हिंदी में उदय प्रकाश हैं, वो पसंदीदा है, और अंग्रेजी में मैं बात करूं तो डैन ब्राउन। ओके, डैन ब्राउन मुझे भी काफी पसंद है। प्रेमचंद भी मैंने पढ़े हैं। रिसेंटली में मैंने आई थिंक आमिश त्रिपाठी की बुक्स आती रहती हैं, वो थोड़े हिंदी माइथोलॉजी पे लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी बुक्स भी थोड़ी हटके किया है। हाँ, मिथुआ से जो शुरू किया था, एक दे दी है। क्राइम में भी हमारे बहुत अच्छे ऑथर जैसे हुसैन जैदी हैं, पत्रकार ही हैं मुंबई के, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं क्राइम जर्नल पर। तो बहुत सारे हैं, बट एक वैरायटी ऑफ चीज के तौर पे रखते हैं, इस लाइक थाली के तौर पर
एक ऑथर को रीडर को रहना चाहिए। मतलब थाली अगर आप इंडियन थाली देखेंगे तो आपको गीली सब्जी भी मिलेगी, सूखी सब्जी भी मिलेगी, दाल भी मिलेगा, कढ़ी भी मिलेगी, सादा चावल भी मिलेगा, पुलाव भी मिलेगा, रोटी मिलेगी, पूरी मिलेगी। आप एंजॉय कैसे करते हैं? एक ही जॉनर को आप लगातार लगातार पढ़ते रहेंगे तो अगेन बोर हो जाएंगे या मोनोटोनस चीजें होती है। मतलब अगर मान लो मुझे पता है कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, हाँ। बट मगर आपको रोज खिलाते रहूंगा ना, आप तंग आ जाओगे 10 दिन के अंदर। ट्रू, बिल्कुल। तो जितनी वैरायटी आप देंगे उतना अच्छा है। ओके, तो बुकिश चीजें जो होती हैं उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? क्वेश्चन मैं आपसे समझ नहीं पाया। ओके, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बुक्स में होती है या बुकिश वर्ल्ड में होती है, कोई जॉनर जो आपको नहीं पसंद, या बुक्स में अक्सर कोई चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जो आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए। नहीं, जॉनर तो देखिए मुझे लगभग सभी पसंद है। सिर्फ ये चीजें होता है कि ऑथर जो होते हैं दरअसल में रियल लाइफ में कुछ और होते हैं और लेखक के तौर पे अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करते हैं और उनका लेखन किसी और चीज में जाता है। तो ये जो मिक्स मैच वगैरह होता है वो मुझे पसंद नहीं आता। बिकॉज ऑथर है, उसकी एक छाप है लेखक की, उसके राइटिंग पे भी दिखनी चाहिए और उसकी पर्सनालिटी पर भी दिखाई देनी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि एक लंबे वक्त तक वो अपने रीडर और समाज से जुड़ा रह सकता है। बिल्कुल, फिर ये आपको भी कनेक्ट करने में इजी लगता है। इट्स लाइक इजी टू कनेक्ट विद दैट ऑथर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। एंड थोड़ा सा हम इसको लाइट माहौल में भी ले जाते हैं। खाने पीने की बात हो रही है, रसगुल्ले की भी, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? आप चाय वाले पर्सन है या कॉफी वाले? सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले मैं चाय कॉफी पीता हूँ। हर 1-1.5 घंटे में चाय कॉफी मुझे पीने के लिए चाहिए। ओके। सनसेट के पहले। अब डिपेंड करता है कि कौन मुझे इनवाइट करता है। अच्छा, उस पर डिपेंडेंट है। नथिंग हार्ड केस कि मुझे चाय ही चाहिए या कॉफी ही चाहिए। सनसेट के पहले पी चुका हूँ ना इतने। सनसेट के बाद माहौल देखे बदल जाता है ना, सूरज ढला, शाम हो जाती है तो माहौल बदल जाता है। मतलब काफी अडेप्टेबल टू सिचुएशन हुए। और पत्रकार वगैरह तो उनको होना भी पड़ता है इस तरह का एडेप्टेबल। बिल्कुल। तो अभी जस्ट अ फ्यू फाइनल क्वेश्चंस, हम ज्यादा आपको ट्वीट नहीं करेंगे बिकॉज ये हार्पर कोलिन्स के साथ आई थिंक आपकी फर्स्ट बुक है जो आई है इन द पिक्चर। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है हार्पर कोलिन्स के साथ सो फार? बहुत बेहतरीन रहा है। काफी प्रोफेशनल एक्टिविटी में है, बिकॉज काफी बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, देश का ही नहीं मतलब दुनिया के टॉप उसमें वो आता है। तो अप्रोच काफी प्रोफेशनल रहा था उन लोगों का, हर चीज के बारे में, राइट, कवर पेज बनाना हो, ब्लर्ब लिखना हो, किताब का लॉन्च हो, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी हो, काफी सिस्टमैटिक तरीके से उनका ये चीजें चलता रहा है। तो एक बड़े पब्लिशर के साथ एक खास बात होती है, खास और अंग्रेजी का पब्लिशर है तो मूलतः तो अंग्रेजी के ऑडियंस पे ये जो रीडरशिप है उसपे उसकी अच्छी खासी पकड़, नब्ज को जानते हैं उसकी। ओवरऑल अनुभव बहुत अच्छा रहा। हार्पर कॉलिन्स के सचिन शर्मा थे, उनसे मेरी लगातार बातचीत वगैरह हो रही थी। और इनफैक्ट किताब पहले, असल में तेलगी वाली किताब पहले आने वाली थी, जो वेब सीरीज का जो निर्माण था, प्रोडक्शन था, वो डिले हो गया। तो उस वजह से तेलगी किताब थी, उसके जो रिलीज को थोड़ा हमने पोस्टपोन कर दिया और पहले CIU जो किताब थी, कन्वर्सिंग इंडियन फॉर्म, उसको पहले कराया, बट वेरी प्रोफेशनली हैंडल। ओके, तो अगर जस्ट एज पार्टिंग वर्ड्स में बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यंग ऑथर्स हैं या यंग रीडर्स भी हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वर्नाकुलर वाले जो नए ऑथर या वगैरह होते हैं, एक अलग सा हिचकिचाहट होती है, या फिर अपने आप को अपनी जो मूल भाषा है या मातृभाषा है, चाहे हिंदी हो, मराठी हो या कोई, उस तक ही लिमिट करने का सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट में अगर दम हो, और आज का जो दौर चल रहा है खासकर OTT के आने के बाद, की कंटेंट इज किंग वाला जो दौर है वो लौट के आ चुका था। अगर कंटेंट में दम है तो उसके बाद आप किसी भी भाषा में किताब लिखे, वो अंग्रेजी में भी आएगी, अन्य भाषाओं के अंदर भी आएगी। तो वो जो हिचकिचाहट है वो उनको छोड़ देनी चाहिए। दूसरी चीज है ऑथर्स के लिए कि अपने आप को बहुत फोर्स नहीं करे और पुश नहीं करे। आप किताब नहीं लिखते, किताब अपने आप खुद को आपसे लिखवा लेती है, तो उसका अपना वक्त आएगा, वो अपने आप को लिखवा लेगी आपसे। तो
तो अपने आप को जबरदस्ती पुश करके जबरदस्ती राइटर ऑथर बनने की कोशिश करेंगे तो आप ऑथर तो बन नहीं पाएंगे उस तरीके का जैसा आप बनना चाहते हैं। और सेम रीडर के लिए भी मुझे लगता है नए रीडर की कि किताबें आई कांटेक्ट हमेशा किताबों से बनाए रखिए। हम लोग वर्चुअल दुनिया में ऑनलाइन भी होता है पर बुक शॉप्स वगैरह को रेगुलरली विजिट कीजिए। एक बार आपकी नजरें मिलेगी किताब से और उसके टाइटल से, उसके बाद किताब खुद ही आपको कहेगी कि प्लीज खुद ही बैग में आके बैठ जाएगी। तो ये चीज है, इस अबाउट कम्युनिकेशन की आप कम्युनिकेट करते हो, बिल्कुल आप दिमाग में कहीं ना कहीं आप आके मिलेगी तो आपकी बातचीत उस किताब से हो ही जाएगी। बिल्कुल, वो तो एब्सोल्युटली होता है। स्पेशली मेरे साथ होता है जब मैं कहीं मॉल भी जाती हूँ, अगर मुझे वहां कोई बुक स्टोर दिख गया एक शॉप में, तो मुझे अंदर जाना ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाय द टाइम यू विल रिटायर आपकी अपनी लाइब्रेरी होगी जो बड़े बड़े बुक स्टोर से बड़ी होगी। लेट्स होप सो, आई एम प्रेइंग ऐसा हो। ओके संजय जी, आई थिंक फ्रॉम क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव ये इतने ही सवाल थे आज आपको तंग करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस विथ योर प्रेजेंस। इट हैज बीन अ रियली enjoyable and inquisitive session with you. I wish you the very best actually for your upcoming web series, and all our watchers over here, do tune in to the web series as well. And in the meantime, you can also read the book because you have a couple of weeks still over before the release, I'm sure. Right? And that, my friends, would be a wrap up for our today's session. I hope you guys actually enjoyed it. Let me know in the comments down below what is your favorite part about this, and drop me a comments emoji if you have watched the video so far. And we'll catch up with you next time very soon. Until then, keep your coffee strong and your TBRs long. Goodbye. Thank you.